नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट शैनन परमाल के साथ। आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए धन्यवाद। जून 21 समर मौसम का पहला दिन है, सो बी श्योर टू एंजॉय द सन। लेकिन जब आप बाहर जाता है तो सनस्क्रीन विद SPF over 30 लगाना मत भूलिए। That being said, try to keep your windows closed during this scorching hot weather. BC में 8 बच्चे ओपन विंडो से गिर गया है और out of 8, 2 couldn't survive and unfortunately had died. So please keep your windows closed and use air conditioner or fans to cool off if you have young children in your home. July 1st is Canada's 152nd birthday. तो सभी को Happy Canada Day. Having said that, people in Victoria and in Kamloops are boycotting Canada Day celebrations due to the tragedy of 215 Aboriginal unmarked bodies that were found at one residential school in Kamloops. तो आप क्या सोचता है? कैनेडा डे के बर्थडे को लेकर क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहते हैं या नहीं? अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना। एक और बड़ी घटना came from Saskatchewan. They discovered 751 unmarked bodies of children at the residential school compound there. Our hearts and our prayers are those community members and parents जिन्होंने अपने बच्चे खो दिया है। एक क्राइसिस लाइन सेट किया गया है उन लोगों के लिए who need any support. The number is 1-866-945-4419. I'll be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion. Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no-obligation consultation at 778-840-5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ के साथ है मिस्टर विक प्रसाद. So here you go. नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद. आप सभी को कनाडा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. फिजी में कोविड-19 केसेस में तेज़ी से बढ़ती देखी जा रही है. पिछले शुक्रवार को 308 कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं और ये एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. शनिवार को 266 न्यू कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट किए गए थे. पिछले रविवार को परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग ने कहा है कि 262 नए केसेस कोविड-19 के सामने आए हैं. नए केसेस जित्तू एस्टेट, MV लिहोना शिपिंग, मिल्वर्टन रोड, नतोकोंग्रावू वाइकेते विलेज और नाउलुवातु विलेज में पाए गए हैं. 67 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति जो सुववो का रहने वाला है जो कोविड-19 से संक्रमित था, उनकी मृत्यु पिछले शनिवार को हो गई. उनको वैक्सीनेशन का एक ही डोज नहीं लगा था. 50 ईयर ओल्ड व्यक्ति जो न्यूटन नसीनु का रहने वाला था, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनकी मृत्यु घर पर हो गई थी और जब उसे वालेलेवु हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मृतक घोषित कर दिया गया. मृत्यु से पहले उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी. डॉक्टर फोंग का कहना है कि कोविड-19 से अभी तक 17 लोगों की मृत्यु हुई है और इनमें से 15 लोगों की मौत कोविड-19 से और विश्वास किया जाता है कि 2 लोगों की मृत्यु अन्य बीमारियों से हुई है. इस सोमवार को कोविड-19 के 241 न्यू केसेस पाए गए हैं. अप्रैल 2021 से अभी तक फिजी में 3,726 केसेस पाए गए हैं. मार्च 2020 से अभी तक 3,832 केसेस कोविड-19 के हुए हैं, जिसमें से 779 लोगों को रिकवर हो गया है. फिजी में 46% पॉपुलेशन को एस्ट्राजेनिका का पहला डोज लग चुका है, जबकि 6.5% पॉपुलेशन को दोनों डोजेस दे दिया गया है. हेड ऑफ वैक्सीनेशन टास्क फोर्स डॉक्टर रेचल देवी का कहना है कि लोगों को एस्ट्राजेनिका के विषय में जो फेक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए.
नेशनल 7-डे एवरेज पॉजिटिविटी अब बढ़कर 7.4% हो गया है और ये बढ़ता जा रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 5% थ्रेशोल्ड को पार कर गया है, जिसका मतलब है कि आउटब्रेक अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि फिजी में पूरे जोर शोर से स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जारी है और इससे जो जानकारी इकट्ठा हुई है उससे ये पता चलता है कि लामी सुवा नौसोरी कंटेनमेंट जोन में कोविड का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और इसे ये भी संकेत मिलता है कि कोविड सिर्फ कुछ ही इलाकों में सीमित नहीं है और हर एक नागरिक को सतर्क रहना पड़ेगा। मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रवीण वाला का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य हो गया है। जो लोग फिजी से बाहर वर्क स्कीम के तहत ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड काम करने के लिए जाएंगे उन्हें वैक्सीनेट किए बिना जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। पिछले शनिवार को फिजी टाइम्स सुवा ब्रांच को तब बंद कर दिया गया और साफ सफाई किया गया क्योंकि वहां पर एक एम्प्लॉई जो छुट्टी पर था उसे कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। फिजी टाइम्स ने पुष्टि की है कि ये कदम इसलिए जल्दबाजी में उठाया जा रहा है ताकि अन्य कर्मचारियों भी इससे सुरक्षित रहे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नया ऑर्डर जारी किया है कि सभी फिजियंस को अब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। हर एक व्यक्ति जो घर से बाहर जा रहा है उन्हें सही तरीके से मास्क लगाना पड़ेगा। ये कोशिश कोविड-19 को और बढ़ाने से रोकने के लिए है। पुलिस ऑफिसर्स कंटेनमेंट एरिया या लॉकडाउन जोन में मास्क को लेकर सख्ती बरतेगी। भूतपूर्व सुबह सिटी काउंसिल लॉर्ड मेयर चंदू उमारिया की मृत्यु शनिवार सुबह हो गई। स्वर्गीय उमारिया ने 2018 तक सुबह सिटी काउंसिल के लिए काम किया था और वो स्ट्रोक से पीड़ित थे। अब खेलकूद के जगत से कुछ जानकारी। ओशिनिया सेवंस के अंतर्गत 6 टीमों में फिजी ही एक ऐसा टीम था जो अनडिफीटेड ठहरा था। फिजी ने बहुत ही शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट को दिखाया है। फिजी के मैचेस कुछ इस प्रकार से है। फिजी सेवंस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ उसमें फिजी ने ऑस्ट्रेलिया को 26-14 से पराजित किया। फिजी ने ओशिनिया सेवंस को 32-12 से पराजित किया। फिजी ने न्यूजीलैंड को 21-19 से पराजित किया और फिजी ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया को 19-7 से पराजित किया और अंतिम मैच में फिजी ने न्यूजीलैंड को 17-7 से पराजित करते हुए इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। फिजी टीम को हम बधाई देते हैं। जापान में टोक्यो ओलंपिक्स के अंतर्गत सिर्फ एथलीट्स को ही भाग लेने की अनुमति दिया जाएगा। कोविड-19 के चलते ओलंपिक्स में पब्लिक तथा एथलीट्स के फैमिलीज को देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम को हम पूरे हिंदी भाषा में प्रसारित करें। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू विक प्रसाद। अगर आपके पास भी कोई लोकल न्यूज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप विक को कॉल कर सकते हैं या हमारे स्टूडियो के नंबर भी कॉल कर सकते हैं जो क्रेडिट्स में लिखा है। अगर आपने वैक्सीन के लिए नहीं बुक किया गया है तो जल्द से जल्द बुक कर लीजिए। आप कॉल कर सकते हैं वैंकूवर कोस्टल हेल्थ को at 1-877-587-5767, फ्रेजर हेल्थ को at 1-877-755-2455 or online at gov.bc.ca/getvaccinated। अगर आपके पास भी कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है, स्पेशल बर्थडे एनिवर्सरीज या डेथ न्यूज़ है जो आप रेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एंड ईमेल एड्रेस है pgnfocus2021@gmail.com। Up next we have our cooking segment। बिना खिलाए पिलाए हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको स्वाद आएगा। So please enjoy। Hi there, welcome back to my channel Taste of Fiji. Namaste, Assalamu alaikum, Sastrikal and Nisambula Binaka. Today I'm going to show you how to cook an authentic Fijian fish curry. Fiji is a multicultural place and every cultures have their own way of cooking any dish. So this is my version of Fijian fish curry. You with me? All right, let's get it on.
mixture is done, and I'm gonna try and taste it out. Usually people have it on roti, cassava, dalo, or rice. I prefer rice, and I'm gonna have it with rice. So let's see. Man, it's so damn tasty. Well, guys, thank you for watching my show. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Until next time, like we Fijians say, Nisam Mode. अब हमारे साथ में मिस्टर विक प्रसाद who is a mortgage broker is here with us. Home prices बहुत हाई हो गए हैं, स्ट्रेस टेस्ट भी हाई है. मार्केट में क्या हो रहा है, सुनते हैं विक प्रसाद को. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बुला फीजी. जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें आपका फीडबैक मिला कि हम ये जो हमारा फीजी का प्रोग्राम है इसमें हम ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं. हमारी कोशिश अब से यही रहेगी कि हम कोशिश करेंगे जो फीजी का प्रोग्राम है हिंदी बोलें, जिससे आप सभी हमारे भाषा को समझ सकते हैं. और हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी भाषा है. तो उसके बाद में हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे गेस्ट है वन ऑफ आवर ओन, जिसको आप बहुत लाइक करते हैं, वेरी पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. वो है द एंकर ऑफ द फीजी न्यूज़ इन ब्रीफ, मिस्टर विक प्रसाद. विक प्रसाद इज़ अ वेरी वेल नोन मेंबर हमारे फीजियन कम्युनिटी में है. और उसके साथ साथ में जो जॉब कर रहे हैं वो मॉर्गेज ब्रोकर का जॉब कर रहे हैं. आपको पता है अभी घर बहुत हॉट सेल कर रहा है. आपको क्यों मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाना चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए. तो विक जी हमारे स्टूडियोज़ में, तो आपका स्टूडियो है, आने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. धन्यवाद कमिला जी, और मुझे होस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दिस इज़ योर शो. थैंक यू. अच्छा, आप कुछ अपने बारे में बताइए. जिन लोगों को पता नहीं है, विक को जानते देखते हैं, रेडियो में सुनते, टीवी में देखते हैं और जगह जगह पर देखते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मेरा नाम विक प्रसाद है और मैं मॉर्गेज ब्रोकरेज में हूँ. मैं बहुत 6 सालों से मॉर्गेज का काम कर रहा हूँ, साथ साथ में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स का काम भी कर रहा हूँ. लेकिन आज खास करके हम आए हैं यहाँ पर आपको टिप्स देने के लिए मॉर्गेजेस के बारे में. जी हाँ, तो जब हम मॉर्गेज की बात कर रहे हैं, आपके फिर से हम लेकर आएंगे इंश्योरेंस की बात करने के लिए और सभी चीज़ें जो साइड लाइन आप करते हैं और चीज़ करते हैं उनके बारे में बात करने के लिए. लेकिन एक देखो, अगर हम रियल स्टेट बाय करना चाहते हैं, घर बाय करना चाहते हैं, तो हम चले जाते हैं बैंक में. हमने कहा कि हमें मॉर्गेज अप्रूव कराना है. तो जो मॉर्गेज ब्रोकर है उनका रोल क्या है, क्या करते हैं वो? कमिला जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है. मॉर्गेज ब्रोकर वर्सेस बैंक. मॉर्गेज ब्रोकर, यूं कह सकते हैं कि मॉर्गेज ब्रोकर जो है वो आपके लिए काम करते हैं. मॉर्गेज ब्रोकर आपके लिए अच्छा रेट ढूंढ कर देते हैं, अच्छा कौन सा बैंक अच्छा है वो ढूंढ कर देते हैं. वर्सेस जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक, सपोज आप चले जाते हैं टीडी बैंक में, तो टीडी बैंक सिर्फ आपको जो टीडी का रेट है वो देगा. और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, लोग जाते हैं टीडी बैंक और उनका मॉर्गेज नहीं अप्रूव हुआ तो वो आकर घर बैठ जाते हैं कि भाई अब हमें मॉर्गेज नहीं मिल पाएगा. लेकिन हमारा काम ये होता है कि अगर आपको टीडी बैंक में शायद रेट ज़्यादा है तो हम दूसरे बैंक से ढूंढ के दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी बैंक्स के लिए काम करते हैं या सभी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, सभी बैंक के साथ में. तो हमारा काम है, अगर बैंक में नहीं अप्रूव हुआ तो हमारे पास मोनो लेंडर्स है, अन्य तरह के लेंडर्स हैं, उनके साथ में आपका मॉर्गेज जो है वो अप्रूव करके देना, ये हमारा काम होता है. तो यू शॉप राउंड फॉर योर क्लाइंट. बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं. हमारा काम होता है कि क्लाइंट के लिए अच्छा जो प्रोडक्ट है वो ढूंढ कर दे. अच्छा, अभी जल्दी से जल्दी अभी सुनने में आया है, काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो मॉर्गेज अप्रूव नहीं कर, दे आर नॉट एबल टू अप्रूव मॉर्गेज. वो कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट जो आ गया है, थोड़ा सा बात बताएं कि ये हाई स्ट्रेस टेस्ट.
ये भी बहुत एक सुंदर प्रश्न है। देखिए, स्ट्रेस टेस्ट होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप मोर्गेज लेते हो, कल को अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए, राइट, तो क्या आप अपना मोर्गेज जो वो पे कर पाओगे कि नहीं। तो पहले जो पुराना इंटरेस्ट रेट था वो था स्ट्रेस टेस्ट का 4.79%, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5.25% कर दिया गया है। तो क्या होता है इसमें, जो 5.25% है, अब बैंक देखना चाहते हैं कि कल को अगर रेट्स ऊपर गए तो आप उनके उस तक क्वालिफाई हो जाओगे कि नहीं। लेकिन अब ये बुरी बात ये हुआ है कि अब जब 5.25% हो गया है तो लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 4% है उनका बाइंग रेट कम हो गया, बाइंग पावर कम हो गया है। अच्छा। मान लीजिए जैसे आप घर लेना चाहते थे पहले 800,000 का, 8 लाख का घर लेना चाहते थे, तो 8 लाख का आप 4.75 स्ट्रेस टेस्ट पे क्वालिफाई हो रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब 5.25 हो गया है तो इंस्टेड ऑफ आप क्वालिफाई इनकम बेस्ड पे आप क्वालिफाई हो रहे थे 8 लाख का, अब आप 4% कम हो गए। सो से 30,000 कम होंगे तो अब आपको सिर्फ 770,000 का घर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। तो स्ट्रेस टेस्ट आने से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए। अच्छा। और जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जो जी। फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं बाय करने के लिए, इतना पैसा अभी सेव किया पेंडेमिक में एंड ऑल दैट, तो एक किस तरह के उनके साथ में इम्पैक्ट हो सकता है? इट इज द सेम थिंग, चाहे आपने बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस टेस्ट सभी के लिए, आप चाहे इंश्योर्ड मोर्गेज लेते हो या कन्वेंशनल लेते हो। इसका मतलब ये है कि देखो, फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, कुछ लोगों के पास सिर्फ 5% होता है जी। तो 5% में आप बाय कर सकते हैं अप टू 500,000। ओके। लेकिन उसके लिए भी स्ट्रेस टेस्ट है, 5 आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, और आप चाहे 20% डाउन करते उसके लिए भी स्ट्रेस टेस्ट है। तो पहले जब ये स्ट्रेस टेस्ट को बढ़ाने जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि सिर्फ वो होगा जो इंश्योर्ड मोर्गेज है, जो 5% या 10% या 20% से कम दे रहे हैं। लेकिन जब ये आया इफेक्ट में तो वो अक्रॉस द बोर्ड कर दिया, सभी को पे करना पड़ा। अभी जो रियल स्टेट है बहुत हॉट है, जी। इज इट अ गुड टाइम है भी घर बाय करने के लिए? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैं सभी टाइम यही बतलाता हूँ कि इट्स ऑलवेज द गुड टाइम टू बाय, सभी टाइम। क्योंकि अब देख लो, आज से 3 साल पहले का घर का प्राइस देख लो, 10 साल पहले का देख लो, हर साल घरों का प्राइस जो है ऊपर जाता ही जाता रहा। तो अगर आज आप बाय नहीं करते देन यू विल मिस द ट्रेन। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। हम कभी नहीं कह सकते कि कल को प्राइस नीचे आएगा, घरों का प्राइस नीचे आना ही नहीं है। अच्छा। ऐसा प्रेडिक्शन हुआ है कि बाय दिसंबर घरों का प्राइसेस और ऊपर चला जाएगा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने किया है कि इज़ दिस द बेस्ट टाइम टू बाय। जी हाँ, अभी बेस्ट टाइम है। अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो, बाय कर लो। कल को पता नहीं स्ट्रेस टेस्ट साइड 10% कर दे, फिर क्या करोगे? हाँ, फिर ऊपर और मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। एज अ मॉर्गेज ब्रोकर, अगर मैं पहली बार आपके पास आई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मॉर्गेज ब्रोकर का रोल नहीं पता है, रियल एस्टेट का पता नहीं है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी कि मेरे पास इतना पैसा है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपके पास पैसे और आप बाय करना चाहते हैं तो कैसे आप जान पाओगे कि आप कितना के लिए क्वालिफाई होते हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले एक मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बैठिए, क्योंकि मॉर्गेज ब्रोकर आपको पूरा कैलकुलेशन करके देगा, इनकम कितना है आपका, एक्सपेंसेस कितना है, कितना मॉर्गेज के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं, कितना डाउन पेमेंट चाहिए। और एक और बात, अच्छी बात है मॉर्गेज ब्रोकर के लिए कि आप जब बैंक में जाते हो, आप टीडी जाते हो, तो टीडी एक बार क्रेडिट पुल करेगा, आप फिर जाते हो बीएमओ, फिर बीएमओ आपका दूसरी बार क्रेडिट पुल करेगा। इससे बेहतर है कि जब मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाते हो तो वो एक क्रेडिट ब्यूरो पुल करता है, वो सभी बैंक को जाता है जहाँ जहाँ वो ट्राई करेगा, जहाँ वो भेजेगा डील को। तो इसलिए बेहतर है कि मॉर्गेज ब्रोकर के साथ में आप बैठते हैं, आपको वो प्री अप्रूवल लेके दे देता है। जी। मैं ऐसे करता हूँ। आप मुझको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, प्री अप्रूवल लेके अपने क्लाइंट को दे देता हूँ, आप जाइए, आप इतने का घर ढूंढिए। Whenever you're ready, come back. बिल्कुल। It's about 90 days. बिल्कुल 120 डेज तक हाँ प्री अप्रूवल होल्ड पे रहता है। आपका नंबर क्या है जी, जो आपसे कॉल करके बातचीत करना चाहते हैं? जी, अगर मेरा नंबर है 604-306-6647। आप प्री अप्रूवल के बारे में पूछ सकते हैं। आप मुझसे अगर इक्विटी टेक आउट करना है, आपके घर में इक्विटी ज़्यादा है, आप रेनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ लोग अभी चाहते समय में किचन रेनोवेट करना, तो उनके पास ऐसे पैसे नहीं रखे लेकिन उनके घर में बहुत ज़्यादा इक्विटी है, तो घर से इक्विटी निकाल सकते हैं, उसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। या आप फर्स्ट टाइम बायर्स हो या न्यू इमिग्रेंट हो, आपके पास सिर्फ 5% डाउन है या आपका क्रेडिट भी ख़राब है, आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपने टाइम लेकर हमारे स्टूडियोज में आए, आपका स्टूडियोज में आए। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जानना चाहिए ना ये मॉर्गेज का, बिकॉज लाइक आई से जो मॉर्गेज है, रियल एस्टेट है, हमारा बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है लाइफ टाइम में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, सो यू शुड बी वेल अवेयर, एजुकेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप मोर्गेज ले रहे हैं, क्योंकि कमिला जी ने बताया कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है लाइफ का। देखिए, घर हमारे जितने भी लोग हम आए हैं इमिग्रेंट्स है जो इस कंट्री में, हमारा पहला कर्तव्य है या हम पहला चीज़ सोचते हैं कि हम एक घर बाय करें। लेकिन अभी के समय लोग कह रहे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू बाय। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू नीड टू मेक द राइट डिसीजन, यू नीड टू फाइंड राइट पीपल हाउ टू गेट इट डन। थैंक यू। थैंक यू सभी सुनने वालों को और देखने वालों को विक प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। Finally, there's no show without entertainment. तो आप अब लोगों के लिए एक भोजपुरी सॉन्ग, so please enjoy. मेरे प्यारे भाई लोग, हम आज आप लोग के बीच में आया हूँ ये बताने के लिए कि यदि रउआ लोग के हिंदुस्तान के हालत में सुधार लाना है, एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार बनाना है, तो एक बार फिर हमरा के आप लोग जिता दीजिए। हम रउआ लोग से वादा करते हैं कि हम बहुत कुछ करके दिखा देंगे। ए नेताजी, हाँ बोलो। का करबा? अरे भाई, तुमको मालूम नहीं है क्या? हमके मालूम ना, बतावा। बताएं। हाँ बतावा। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, समझ रही हो? हाँ हाँ समझ रहे हैं। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। अच्छा, ए नेताजी, है हाँ। कुल बंद करा, बड़ा हम सुन ले है जा। अच्छा, हाँ सुना हमार बात। आवते चुनाव फिर आए गैला नेताजी, आवते चुनाव फिर आए गैला नेताजी, बन के बहु रुपया दिखाए गैला नेताजी। आए? बड़ा कुल हमार भाषण सुनिला। तो ये भाई, हम नेता हैं, चुनाव में नहीं आएंगे तो का रोज धाएंगे? हमको फालतू समझती है क्या? अरे अभी तुमको बताते हैं, हमारा बात सुनो। बक बक बोलो मत, विचार सुनो मोरा। विनाका, शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग फीजी इन फोकस। आज का इस शो का समय एंड हो गया है, बट आई होप कि आपने इस शो को एंजॉय किया होगा। New shows of Fiji in Focus air every Tuesday at 10 p.m. and repeat of this show is on Sunday at 4 p.m. And for Alberta viewers, that'll be every Tuesday at 11 p.m. and Sunday at 5 p.m. अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना। Sponsorships के लिए please call 604-537-5123. That being said, अपना और अपने family का ख्याल रखना. Stay safe and stay healthy. I'm your host Shannon Pramal signing off.